Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज का विषय ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है. Today's topic is very important because this topic is related to our reality of life. ये हमारी सच्चाई से जुड़ा हुआ है और सच्चाई ये है कि ज़िंदगी में दुख है तो श्योर दुख का अनुभव हर प्राणी करता है. क्या दुख से क्या हम निराकरण पा सकते हैं? क्या इसमें से निकल सकते हैं? क्या कोई तरीका है कि हमारी ज़िंदगी में जो दुख आते हैं उससे हम बच सकते हैं? Is there a way that the inevitable suffering of life can be changed? Is there answers to these questions of the suffering of life? Because that's the truth of life. To know more about this, we will take the help of none other than our Venerable Nagajiva, our own Dr. Lim, who's going to teach us and guide us through his Shunya talks into understanding the deeper meaning of what is suffering. Can we come out of it? Is there a way? And what is the reality of life? ये ज़िंदगी की सच्चाई क्या है? उनकी नज़र से भी देखना बहुत ज़रूरी है. उम्र में हमसे भी बड़े हैं. He has seen more of life. He's probably understood life in a different way. He has gone through his part also. And I think we will, without wasting any time, we'll give him a call. अभी हम उनको फ़ोन करेंगे और उनको इस शो के लिए आमंत्रित करेंगे. Namaste and good morning, Dr. Lim. Yeah. Morning, namaste. And this is our special show that we always wait for, the 5 p.m. Shunya Talks. And today is a very interesting topic, the reality of life, of suffering. And I put you, the topic is very clear, how to live a happy life. Is it possible to even live a happy life? And how to overcome suffering, because suffering is inevitable. So please, Dr. Lim, all yours. Yeah. I think the main purpose of Shunya is to have a happy life. Okay, that's why we say peace and prosperity. These are the two factors, the two aims of this Shunya. Peace actually means happiness. Okay, yeah. ये बेसिकली शून्य जो कर रहे हैं हम लोग, उसके पीछे कारण यही है कि दो ही चीज़ हम लोग चाहते हैं, एक तो शांति और दूसरा समृद्धि. और ये जो शांति है, यहीं से एक्चुअली जो खुशी का जो एहसास होता है वहाँ से शुरू होता है. यस डॉक्टर. Yeah. Now, why we are not happy? We are not happy with two reasons, Okay, what you want to get, you couldn't get, What you doesn't want to have is imposed on you. These are the two conditions that make you unhappy. You need to. देखो, दुख के सिर्फ दो कारण हैं, और वो है जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता, और जो नहीं चाहिए वो हमारे पे डाला जाता है, वो हमको जबरदस्ती सहन करना पड़ता है. यही दो कारण है जिसकी वजह से दुख है. यस डॉक्टर. Now, if you want to have a happy life, then you have to deal with these two conditions. What should you do when you want something and you couldn't get? What should you do when you doesn't want some condition, something and it's imposed on you? What should you do then? अगर आपको सुखी रहना है तो यही दोनों चीज़ों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा. एक चीज़ वो जो आपको चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो क्या करोगे? और जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप पे थोपा गया, आप पे दादा गया, तो आप क्या करोगे? इन दो चीज़ों से ही आपके सुख का अनुभव आपको मिल सकता है. यस डॉक्टर. At the end of the day, it is your mental state, to deal with these two things. Okay. Now, I like to use what Lao Tzu say, Okay. Whether you're a good man, whether you're a bad man, the sun will come from the east, you'll come to the west. It doesn't care for you, लाओत्ज़ु जो हमारे चाइना के बड़े ताओइस्ट फिलोसोफर थे, जिन्हें फाउंडर भी माना जाता है ताओइज्म का, उनका ये कहना था कि ये सूरज जो है, ये धरती जो है, ये हवाएं जो है, ये
तुम कौन हो इसकी कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए तुम इनसिग्निफिकेंट हो। उसी तरह आपके लिए ये बहुत समझना ज़रूरी है कि आपका सुख और दुख आपसे जुड़ा हुआ है। यस डॉक्टर। So whether you're happy, whether you're not happy, the condition, the phenomena will always be there, no, and it does not care about you. Okay, the world is going on as it is, no. So whether you're happy, whether you're not happy, it had nothing to do with all this phenomena. It's all inside your mind. अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दुनिया जो है ना आपकी चिंता नहीं करती। आप सुखी हो दुखी हो, ये संसार फिर भी चलेगा, यह सत्य है। और इस सत्य से आपको वाकिफ़ होना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें होती रहेगी। ये जो धर्म बोलते हैं, जिसे फिनोमिना बोलते हैं, ये चलता रहेगा और इसमें हमारा योगदान जो होगा वो होगा। लेकिन हम जो चाहते हैं, हमारी चाहत, हमारी राहत, इससे कुछ लेना देना नहीं। जो संसार है वो ऐसा ही चलेगा। यस डॉक्टर। That's why the sunya coming in, And sunya is a mind training. It's to train your mind. Okay, it's to reset your mind. Now, once your mind can be reset, there are many conditions in your life. You can deal with it peacefully. इसीलिए शून्य क्यों करते हम लोग? रीसेट करने के लिए, अपने आप को वापस जैसे थे वैसे बनाने के लिए। ये अगर आप कर पाए तो आपके जो मन में इतनी दुविधाएं आती है, इतना जो तकलीफ होता है, आप उसमें से अगर किसी तरह उसको डील करने लगे, आप अपने आप को रीसेट करने लगे, तो आपके लिए वो शांति का अनुभव ही सुख दे सकता है। यस डॉक्टर। Actually, we already talked about two truths now. Okay, first is the world is not perfect, Don't expect the world is perfect, Okay, see, whatever you expect and whatever the reality, these two normally do not match. Doctor, so there are 4 truths, right? And you're talking about the first truth is that this world is imperfect. Yeah. The world is not perfect, The world is not perfect. What you expect, okay, what is in the reality, it do not match. हाँ, अभी ये हम चार सत्य जानने वाले हैं। और ये 4 में से पहला सत्य ये है कि ये संसार जो है ये परफेक्ट नहीं है। ये आपको चाहे वैसे जैसे सोचते वैसा नहीं है। और आपकी जो सोच है वो इस संसार के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं होती। आपकी परफेक्ट सोच और ये संसार का इम्परफेक्टनेस दोनों मैच नहीं होता है। यस डॉक्टर। Yeah, I can hear you. Can you hear me? Today is low line. Yeah, the line very bad. It's not perfect, doctor. Yeah, never mind. Okay. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. So now, this expectation, this is the reality. Okay, how to match your expectation with the reality? This is what we call yoga. ये सच्चाई है और सच्चाई के साथ आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो कैसे मैच करना है, इसको कहते हैं योगा। ये जान लो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। यस डॉक्टर। Yeah. So now you know that the world is not perfect. Okay. So whether you are happy or we are not happy, it's nothing to do with the heaven, nothing to do with the earth, okay? Nothing to do with God, nothing to do with the government. It's all because of our mind. Whether we are happy or whether we are not happy. आपका खुश होना या ना खुश होना, इसका ये भगवान, ये स्वर्ग, ये नरक, ये गवर्नमेंट, ये दुनिया, इससे कुछ लेना देना नहीं। ये सब लेना देना है आपके मन के साथ। यस डॉक्टर। So now you need to adjust your mind, to deal with the reality. Okay, to adjust your mind. Then the second truth is that the suffering is all inside your mind. We are the one who cause the suffering. We are the one who feel suffer. This is the second truth. So the second truth is that first, the world is not perfect, Because of this imperfection, it causes suffering. Okay, and this suffering is created by your mind. Second truth. हाँ, okay.
सो द फर्स्ट, जो पहला वाला सत्य है कि ये संसार जो है ये परफेक्ट नहीं है, और आप जो सोचते हो कि परफेक्ट होना चाहिए, ये मैच नहीं होते रियलिटी के साथ। फिर ये जो है ये सत्य आप पहला मानना चाहिए कि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। ये जो दुनिया परफेक्ट इम्परफेक्ट होने की वजह से आप इस दुनिया में आपको जो अनुभव होता है, वो जो दुख का कारण है वो आपका मन है। मन के वजह से आपके दुखों का अनुभव होना शुरू होता है, दुनिया की वजह से नहीं। तो ये आप जान लो। यस डॉक्टर। Yeah. So through the sunya practice, okay, you can reset your mind, okay. Then you can deal with the suffering, okay. Then you can know how to deal with it, which we'll discuss later, okay. Then you will reach a very peaceful stage. The truth. तो शून्य प्रैक्टिस से हम लोग क्या कहना चाहते हैं? ये जो दूसरा सत्य है जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारा मन जो है, यहाँ जो सफरिंग का कारण है, जहाँ से शुरुआत होती है दुख की, वहाँ पे हम लोग मन को हम रीसेट करते हैं। जैसे मन रीसेट हो गया, शांत हो गया, तो हम कहीं ना कहीं जो दुख का कारण है वहाँ पे ही काम करने लग गए। यस डॉक्टर। Yeah. So to get this a perfect stage, the mental stage, okay, there are way for you to achieve that, okay, that is the 8 normal path. हाँ, अब तीसरा सत्य यह है कि इसमें से हम जो दूसरा वाला जो स्टेप था, जहां हमको पता है कि दुख का कारण मन है, मन को शांत करने से हम ये दुख से हम निराकरण पा सकते हैं। ये तीसरा सत्य है, मतलब दुख को बदल सकते हैं। और चौथा यह है कि एक तरीका है जिसको अगर फॉलो किया, उस पथ पे चल के हम अपना जो शरीर जिंदगी का दुख है उसमें से हम निराकरण कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अष्टांग मार्ग, यानी 8 fold path। यस डॉक्टर। So these are the four we call it 4 rules, okay, of happiness. First, the realization, that the world is not perfect. 1 minute now, डॉक्टर, 1 at a time। पहला जो ये चार सत्य ये जानना चाहिए। पहला रियलाइजेशन, अनुभव, ये मानना चाहिए आपने कि ये दुनिया जो है परफेक्ट नहीं है। यस डॉक्टर। सेकंड, because of this imperfection that cause suffering in your mind, okay, so that whether you feel suffer, whether you feel happy, okay, it you yourself have to be responsible for it, Okay, this is the second truth. You yourself are responsible for the suffering. पहला होते ही फिर दूसरा सत्य यह है कि आपके जीवन में जो भी है, सुख हो दुख हो, जो भी है, इसके जिम्मेदार आप खुद हो और कोई नहीं है। ये दूसरा सत्य है। यस डॉक्टर। Happiness is a mental state, Okay, it is mental state. So that we practice sunya until one day our mind becomes serene. So there is a stage, where your mind will become perfectly peaceful. This is the truth. It's possible. तीसरा सत्य यह है कि ये जो मन है, मन की वजह से जो ये सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, इसको अगर आपने शून्य प्रैक्टिस जैसे हमने शून्य प्रैक्टिस से रीसेट किया, मन को शांत कर दिया, ये शांत होते ही मन हमारा जो संसारिक दुख है, सुख है, ये सब बदल जाएगा, पूरी तरह बदल जाएगा, और हम दुखों से निराकरण पा सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है, ये भी थर्ड ट्रुथ है, ये सत्य है। यस डॉक्टर। So in our last discussion, we talk about 6 gates. Yes. Okay, and this case 6 is the practice, and this 6 gates will lead to this kind of serenity in the mind. पिछले एपिसोड में हमने 6 गेट्स के बारे में प्रैक्टिस बताया था डॉक्टर लिम ने, कि कैसे हम शून्य प्रैक्टिस में 6 गेट्स की तरफ जा सकते हैं। ये जो 6 गेट्स का जो है, ये यहाँ तीसरे सत्य की तरफ लेके जा सकता है। एक ऐसी शांतता मन की जहां आप पूरी तरह सीरीन, एक अलग ही शांति का अनुभव कर सकते हो। यस डॉक्टर। Yeah, in our last video, we say that there are this minor samatha vipassana, and there is a major maha big this samatha vipassana, the two samatha vipassana. पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा था कि दो टाइप की समता विपස්සना होती है। एक होती है छोटी समता विपස්සना और एक होती है महासमता विपස්සना। Now
the world is not perfect. It causes suffering in you, and then you know, this is our mental state that cause all the suffering. Okay, so through the 6th gate, okay, then we achieve the samadhi. Okay, peacefulness of life. Okay, so that we complete the room of 4 noble truths. वाओ 4 अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 सत्य जानो। पहला ये संसार जो है ये बहुत ही इम्परफेक्ट है, ये इस संसार में आप परफेक्शन मत एक्सपेक्ट करना, कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। दूसरा, इसके रीज़न जो है, इसका जो कारण है वो आपका मन है। मन जो है ये इच्छाएं रखता है, ये बंटवारा करता है, ये मन है इसके पीछे कारण। तीसरा मतलब शून्य से हमने जो 6 गेट के हिसाब से बात की थी, 6ठे गेट में हम जब जाएंगे तब हम समाधि की तरफ जाएंगे, जब हम एक ऐसी स्थिति में जाएंगे जहां मन समाधानी स्टेट में जाएगा, एक पूरी सीरीन स्टेट में जाएगा। और चौथा जो है वहां पे हमारा पथ खुलेगा। ये जो 4 सत्य है ये बेसिकली आपको दुखों से निराकरण दे सकते हैं। यस डॉक्टर। Yeah, this is a small practice. Okay, this is a small practice. Okay, now in this Maha Anapanasati Sutra, okay, it talk about the 5th gate, return. ये जो पहला बताया थे 4, वो छोटी समता विपස්සना के बारे में बताया था मैंने कि यहां से कैसे तुम समाधि की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपने 6 गेट वाला अध्याय देखा है, उसको आप ठीक से देखो, उसमें जो 5वां स्टेप बताया, 5वां गेट, उसको कहते हैं रिटर्निंग, वापस आना। ये 5वां जो है रिटर्निंग के नाम से जाना जाता है। ये डॉक्टर। So by practicing sunya, okay, you will you will get this kind of samadhi, the peacefulness of life. Then you go back to the society, wow, then the world is not perfect, ding dong, ding dong, ding dong, you are not happy again. Okay, then you go back to the practice. This one we call it returning. देखो, जब आप छोटी समता विपස්සना करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप संसार में जाते हो। संसार में आप वही चीज़ों को रियलिटी में आप फेस करते हो, यही तकलीफें, रोज का रोज आना जाना, ये वो तकलीफें। फिर क्या करते हो आप वहां से सहन करते हो, वापस जाते हो, वापस छोटी समाधि में समता विपස්සना की प्रैक्टिस करते हो। ये छोटी और बड़ी इसके बीच में आपको घूमना पड़ेगा। यस डॉक्टर। So it doesn't mean that today you practice sunya, and tomorrow you will be happy, it's not so simple. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि आज मैंने शून्य प्रैक्टिस किया और कल मैं खुश रहूंगा, इतना इजी नहीं है। Life is not so simple, but you practice sunya, okay, after you have peace of mind, then you go back to the society, you do your work, you do your business, then your work left and right, by the real world, okay, you come back, practice again. This is the returning. तुम शून्य प्रैक्टिस करो, शून्य प्रैक्टिस करने के बाद आप जाओ संसारिक जीवन में, जो भी तकलीफें हैं आपको, काम में, नौकरी में, परिवार में, समाज में, इनके बीच में आपको पीटा जाएगा, ये होगा, जो भी तकलीफें होगा, फिर आप वापस आओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, फिर वापस जाओगे, फिर वापस आओगे। ये जो रिटर्निंग वाला है, ये आपको तैयार करेगा आपके अल्टीमेट सुख के लिए। यस डॉक्टर। So there's small returning and big returning. Okay, so you practice reverse counting. Then after that, you stop the reverse counting. You practice the breathing. Okay, to and fro. You're just sitting there. That is the small returning. जब हम छोटी समता विपස්සना करते हैं, तब हम जब गिनती छोड़ देते हैं, 99 से 0 जाते हैं और फिर 700 को फॉलो करते हैं। 700 को फॉलो करते हैं, जब मन वापस डिस्टर्ब करता है तब हम वापस जाके अपने 700 को 9, 8 ये गिनते हैं। तो ये जो छोटा, फिर वापस जाते हैं 700 को फॉलो करते हैं, इसको कहते हैं छोटी रिटर्निंग। ये वापस आना छोटी रिटर्निंग, ये होता है, ये हमारा प्रैक्टिस में होता है। यस डॉक्टर। So when you practice reverse counting, okay, your mind become calm. Okay, then you test the mind. Then you stop the counting. You follow the breathing. Okay. Now, when you follow your breathing, your mind is going to whack you left and right. Then afterward, your mind get disturbed. Then you come back to the what they call reverse counting. This two is the minor practice.
हाँ, जो मैंने अभी बताया वही कि आप जब ये शून्य प्रैक्टिस करते हो, आप सांसों पर काउंट करते हो, आप उल्टी गिनती करते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, फिर सिर्फ सांसों पे नज़र रखते हो, सांसों पे नज़र रखते रखते जब आप नज़र रख रहे हो तो आपका मन आके डिस्टर्ब करता है, मन डिस्टर्ब करता है, फिर आप वापस सांसों पे जाते हो, फिर वापस जब आपका मन शांत हो गया वापस आप अपने सांसों पे नज़र रखते हो, फिर वापस। ये जो है इसको बोलते हैं छोटी वाली रिटर्निंग, मतलब ये छोटी समता विपස්සना का रिटर्निंग फेज है। यस डॉक्टर। So after practice Sunya meditation, you feel peaceful. Say, yeah, I'm going to face the world. No, so you roll your sleeve. Okay, you are going to face the world with very happy heart. इसलिए शून्य प्रैक्टिस करने के बाद जब आप पता चल जाता आप मन को मैनेज कर सकते हो इतने सब थॉट्स आने के बाद, तो आप क्या करते हो, आप अपने अभी खुश हो गए, अभी हाथ को ऊपर उठाते हुए आप बोल सकते हो अभी मैं जा रहा हूँ संसार में लड़ने के लिए, फेस करने के लिए। यस डॉक्टर। Then you go to work, you're facing a very troublesome boss. You want to sell your products, you're facing very troublesome this customer, making so much complaint. So when you go back to your home, wow, there's so many bills to pay, then suddenly your samadhi disappear. तुम ऑफिस जाते हो ये और बॉस आपको चीट चीट कर रहा है, ये कर रहा है, आप जा रहे हो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में लोग कंप्लेंट करते हैं, ये वो सब कुछ चीज़ें, हर चीज़। फिर आप घर पे आते हो, घर पे देखते हो बिल्स इतने सारे आए हुए, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, फिर आपकी जो समाधि थी, जो आपकी शांति थी, वो भंग होगी। Yeah. So you go to the real world, you whack left and right, okay, you're bruised, come back, you practice again. That is the big returning, big one. जब संसार में जाते हो और जब आपको पीटा जाता है, यहाँ हो जाता हो, आपको जब चोटें लगती है, और जब आते हो वापस प्रैक्टिस में आते हो, तब उसको बोलते हैं बड़ी वाली रिटर्निंग, इसको कहते हैं बड़ी रिटर्निंग। यस सर। So when you do a lot of this practice, 2 and 4, then slowly, your mind, okay, can adapt to the condition. Then your work, you can work much more effectively, and you can your mind become more and more serene. ये जब आप ये जो संसार में से जो तकलीफ है फिर वापस प्रैक्टिस में जाते हो, प्रैक्टिस से वापस संसार में जाते हो, ये आप करते हो तो आपका मन जो है, इसको मन की एक आदत बन जाएगी। आदत ये बनेगी किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को नहीं लेने की। तो ये जो इसके वजह से वो उसके अंदर स्वभावतः गुण आने शुरू हो जाएगा मन में कि शांति की तरफ जाने का, शांत रहने का आदत बन जाएगी उसकी। यस डॉक्टर। That's why in this Maha-Anapanasmriti Sutra say that you must go for this Maha practice. This is a great practice. If not, you will never achieve Nirvana. महा स्मृति सूत्र में ये बहुत क्लियरली बताया कि आप ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, महा समता विपස්සना की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको निर्वाण में नहीं मिलेगा। आप सिर्फ बैठ के छोटी समता विपස්සना करते रहोगे, उससे नहीं मिलेगा। आपको बड़ी करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। ये दोनों के बीच में डिंग डोंग करके ही आपको निर्वाण मिल सकता है। वाओ, दिस इज प्रोफाउंड। You see, yeah, according to the MAS, even you do this small this samatha vipassana, you can achieve many miracles, okay. Some the air fly here and there, but it still does not solve your problem. समता विपස්සना जो छोटा समता विपස්සना जब बताई गई है, ये महा स्मृति सूत्र में बहुत क्लियरली बताया कि ये जो छोटी वाली आप बैठ के करोगे अकेले अपने साथ, उसमें आपको चमत्कार मिलेगा। आप हवा में भी उड़ोगे, ये होगा, वो चमत्कारी फीलिंग आएगी, वो लाइफ में भी होगी, लेकिन उससे आपके जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। So when you practice sunya, you already achieve the state of samadhi. You feel extremely peaceful. You feel that you are very your mental state are perfect, okay. Then go to the real world and test your serenity. That's it. जब आप शून्य प्रैक्टिस करते हो, ये छोटी समता विपස්සना प्रैक्टिस करते हो, आपका मन आपको बहुत अच्छा लगने लगा है, शांत लगने लगा है, बहुत अच्छा फीलिंग आने लगा है, तब आपका ये फीलिंग सही है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए आपको संसार में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वहां आपको पता चलेगा आपने जो पाया है वो शांति सही में शांति है या नहीं है। You still remember
the last story of the last video, Su Tongpo, Mr. Su. Oh, after he practiced this sunya, wow, he feels so peaceful, you know. पिछले बार डॉक्टर लिम ने हमें एक अच्छी कहानी बताई थी। ये इस कहानी में नहीं बताया था कि एक जो योगी था वो बड़ी तपस्या करने के बाद वो जब लिख के भेजा था उसने कि मेरे को कोई हवा भी नहीं हिला सकती है, इतना मेरा मन शांत हो गया है। लेकिन फिर जब उसको लिख के गया था कि एक पाद लिख के दिया था तो उससे गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से हिल गया था। तो मतलब वो कहानी आप जरूर सुनिएगा, बहुत बड़ी मजेदार कहानी थी। दैट वाज अ वेरी नाइस फनी स्टोरी, बट इट टेल्स अ लॉट अबाउट हाउ क्रिटिकल द माइंड इज. Doctor, now what you I just want to add before we proceed, because that thing has come in my mind. What you are telling right now of this small and the Maha, the mini and the Maha, is something like, you know, if there is a player, you know, who wants to play some game, football or cricket, and he has to practice in the nets. You know, he has to practice in the as a training, you know, at small, he plays in a small area, and then if he has to test how well he is skilled, he has to go and play the real matches in the stadium in front of everybody. And if he gets whacked there, and if he gets, then he has to come back and practice in the stadium, from the stadium into, this is perfect. I understand it. Yes. Yeah. So, like Mr. Su, okay, yeah, I'm sitting on the top of lotus now. The wind from all the direction now cannot move me. जैसे मिस्टर सू ने कहा था कि मैं जिस कमल पे बैठा हूं, मुझे यहाँ वहां की कोई भी हवा है, ऊपर से नीचे से कोई भी हवा मुझे हिला नहीं सकती है. So he reported this to the monk, no, on the opposite river. So he expect the monk do some good compliment to him. तो मिस्टर सू ने जब ये अपनी बात अपने अच्छे मॉन्क जो उनसे बड़े थे उनको लिखा कि मेरा जो अनुभव हुआ बैठ के, जो मैंने सीखा है वो मैं उसको बताऊं तो वो जरा कॉम्प्लीमेंट देंगे. तो इसलिए उन्होंने चिट्ठी भेज के नदी के उस पार जो उनके दोस्त थे मॉन्क, उनको ये चिट्ठी भेजी थी. यस डॉक्टर. So monk just write one word, P, I mean farting, yeah, farting. तो मॉन्क ने उस चिट्ठी पे ये लिख के भेज दिया, पाद लिख के भेज दिया. Yeah, but he gets so angry. No, he wanted to see the monk. That's why the monk, as I told you, put out 2 sentences. No, the wind of all direction cannot move you. Okay, but one farting will move you across the river. हाँ, तो मिस्टर सू के पास जब वो चिट्ठी आई जिसमें लिखा था पाद, इतना अच्छा उसने लिखा था, उस पर लिख के पाद लिख के किसी ने भेज दिया, तो बड़े गुस्से में मिस्टर सू गए थे नदी के उस पार अपने शिष्य को लेके. और फिर वहाँ तो मोनेस्ट्री बंद थी, लेकिन बाहर 2 जगह पे ऐसी चिट्ठी लिखी हुई थी और उस पर लिखा था कि तुझे तो 6 के 6 दिशाओं की हवाओं ने नहीं हिला दिया, लेकिन मेरे एक जो मैंने पाद लिख दिया उस पाद ने तुझे वहाँ से यहाँ तक लेके आया. मतलब इतना कमजोर था उसका मन. Yes, doctor. Yeah. So can you see the real cause now? Okay. So this is your expectation. Okay. Oh, I am very serene. I reach samadhi. Okay. This thing. I'm very high stage. No, the monk will compliment me. You know. Okay. Then the real world do not match. No, with what you expect. If you get angry, they mean your practice failed. Yeah. अभी आप समझो, ये कहानी सिर्फ मजे के लिए नहीं बताई, इसमें पीछे बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ. एक वो जो सू थे, इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपना जो उसकी सोच थी कि मैंने इतना पाया है, वो परफेक्ट सोच थी. और वो सोच, ये एक्सपेक्टेशन से उन्होंने ये सोचा कि सामने वाला भी उसी को उसी तरह मानेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं. सामने वाले ने कुछ अलग नजरिए से देखा, तो जो उसका परफेक्शन था, उसका जो सोच थी, वो परफेक्ट मैच नहीं हुई. अब उसको गुस्सा आ गया. मतलब वो जो उसका थॉट था वो सही नहीं था, मतलब उसकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट नहीं थी. गुस्सा आना फेल होना जिसे है. यस डॉक्टर. So that to have a happy mind, we practice sunya, okay, to reset our mind. After our mind is reset, we go back to the society, we go back to the market, okay, these are things, then we get all sort of disturbance for this thing, okay. So we assess our mind. Can we deal with this situation nicely or not?
Okay, you can do it nicely, that means you're improved now. If you get angry, you get disturbed, you feel, then go back to practice the reverse counting. अभी शून्य में दो फुल प्रैक्टिस है। एक जो है आप जो प्रैक्टिस करते हो, आप अनुभव करते हो शांति, एक अलग सुख का अनुभव करते हो, उस एक्सपीरियंस को लेके आप समाज में जाते हो, आप अपना काम करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, जो भी कुछ करते हो। अब वही जो शांति है, वही उसको अगर आप मेंटेन कर पाए तो बेहतरीन, आपका प्रोग्रेस बहुत सही हो रहा है। लेकिन अगर वहाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तब आपको वापस वहाँ जो आपकी हालत होगी उसको वापस आके यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वापस अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वापस यहाँ से जो एक सीरीनता शांति का अनुभव लेके वापस जाना पड़ेगा। ये आपको दोनों करना पड़ेगा। यस डॉक्टर। So to make your mind, that's why you pick it short enough. To make your mind peaceful, we should be able to detach from many unfavorable conditions, even favorable conditions. So we also try to detach, both way, okay, so that our mind will become serene. इसीलिए आपको अगर एक अलग शांति का अनुभव करना है तो मन को एक आदत लगानी पड़ेगी, आपको एक सिखानी पड़ेगी। वो क्या है आदत? आपको विषयों से दूर, यानी उससे अटैचमेंट नहीं, उससे डिटैचमेंट वाला सीखना पड़ेगा। आप खुद होके नहीं, इसको आपको आदत बनानी पड़ेगी। और वही जो अब हम शून्य भी करते हैं तब हम वही करते हैं। तो ये आदत जब बन जाएगी कि किसी चीज अच्छी भी हो, फेवरेबल भी हो, अनफेवरेबल भी हो, दोनों से अटैचमेंट नहीं रखना है आपको, तब कहीं आपकी ये आदत आपको फायदा देगी, एक अलग शांति का अनुभव देगी। यस डॉक्टर। So when come to this meditation practice now, okay, so some guru also know, hey, the world is not perfect, the world are troubling, or this a thing now. Then they will try to find somewhere, okay, somehow to make ourselves happy. अभी ये जो सत्य ये है कि संसार में दुख है ही है, लेकिन यही इसका ही फायदा कुछ गुरु लोग लेते हैं, कुछ बाबा लोग इसका फायदा लेते हैं, ये सत्य का। और सत्य का फायदा ऐसे लेते हैं कि पता है उनको कि संसार में दुख है ही, सब लोग दुखी है ही 100%। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज बेचते हैं, किस ऐसी चीज आपके सामने रखते हैं जहां आपको सुख का अनुभव होता है, एक फीलिंग होती है आपको, जो आपको अच्छा लगने लगता है। ये सुख बेचने शुरू कर देते हैं ये लोग। यस डॉक्टर। So basically, we come up with two schools now. Okay, one school is what we call I try not to use the word monkey. Okay, they try to dance. They say, okay, we stay here, relax. They kind of blind relaxation. They say, oh, we relax, music, dancing, relax. No, what should we go and worry? Relax. No, these are one school. Like the hippie culture, doctor. The hippie ones. They are just enjoying, smoke, drink, enjoy. Enjoy, yeah. तो ये दो टाइप के स्कूल होते हैं। पहली वाली स्कूल जो है, ये जो संसारिक दुख जो है सत्य है, उसमें कहीं ना कहीं सुख जो बेचता है वो खरीद देते हैं। और वो कौन सा है कि एंजॉय करो, डांस करो, ड्रिंक करो, गाना गाओ, ये करो, झूमो, वो थोड़ा सुख के पीछे लगा देते हैं उसके पीछे। यस डॉक्टर। There's no point for you to drink. There's no point for you to dance and forget everything, But at the end of the day, you still have to face the world. Okay? So by the time you face the world, you face tons of problems. So this kind of practice is wrong practice. Perfect. अभी जो डॉक्टर ने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सत्य क्या है कि संसार में दुख है ही है। और अगर आप ड्रिंक्स करोगे, सो जाओगे, ये भूलने की कोशिश कर रहे हो, नाच रहे हो, झूम रहे हो, भूलने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी तरह गाना बिना बजा के किसी की दूर होने की कोशिश कर रहे हो, आप बचने की कोशिश कर रहे हो, बच के नहीं जा सकते। ये संसार के सत्य से आप मुंह मोड़ के नहीं जा सकते। तो ये जो है प्रैक्टिस, ये गलत प्रैक्टिस है। In our practice now, we have this biofeedback now. Okay, we achieve something, we go to the world. Okay, we get bruised up, we come back, we practice, we go back, Okay, then we come back, we go back, So we have a kind of positive reinforcement of our mindset.
हमारे जो प्रैक्टिस शून्य में ये देखो बायो फीडबैक मैकेनिज्म पे चलता है। जैसे मतलब हम जो बैठ के अनुभव करते हैं उसको जाके हम टेस्ट करते हैं सत्य है या नहीं, इसका हम टेस्टिंग करते हैं असली दुनिया में। असली दुनिया में जाके चेक करते हैं अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा, और नहीं चल रहा फिर वापस आके हम वापस यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वापस एक अनुभव लेके वापस जाते हैं। ये हमारा जो है ये धीरे धीरे ये आदत बना देते हैं हम हमारे मन को कि कैसे ये जो है जो शांति है उसको हर पहलू में आप उसको यूज कर सकते हो। यस डॉक्टर। And this kind of blind happiness, blind electrical school, they have become a Ponzi school. No? Okay, they ask you to bring in, sell your house, sell your car, bring your money, So after some time, your money is exhausted. ये टाइप का जो नाचने, झूमने, गाने, जो दुख को भुलाने वाले जो मैकेनिज्म यूज करके जो आपको फंसाया जाता है वो ये पॉन्जी स्कीम की तरह है। बाद में आपको घर दार सब कुछ बेच बाच के उनके पीछे जाना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये स्कीम में आप पूरी तरह डूब चुके हो। यस डॉक्टर। Then you ask a newcomer coming in and sell your house, sell your car, this thing, so the newcomer will support all these things. This is a Ponzi scheme. तो ये जो है ये पॉन्जी स्कीम, मनी स्कीम है। मैं क्यों हंस रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा समझा है कि जब ये जो मुझे दुख हुआ है, मैं फंस गया हूं, मेरी हालत खराब है, मैंने बेचा है, मैं नए मेंबर लेके आऊंगा, उनको बोलूंगा, उनको कन्विंस करूंगा, फिर उनको वो फंसेंगे, वो दूसरे को लेके आएंगे, ये चलते रहेगा, ये साइकिल चलते रहेगा। तो जो पुराना है उसको संभालने के लिए नया का आना बहुत जरूरी हो जाएगा। यस डॉक्टर। So another school, okay, they know that the world is not perfect. The world is suffering, so that they get a quiet place. They may be in the mountain, maybe in some places. No, then they stay together. No talking, no eye contact. You keep yourself calm. Okay, this is another school. और इसी जो पहला वाला स्कूल है जो हमको सुख का अनुभव देता है कि बोलते हैं कि दुख से बचने के लिए सुख का अनुभव करो, उसके एग्जैक्टली विपरीत और एक स्कूल है। वो स्कूल ये सोचती है कि ये संसार में दुख है, ये है, तो हम अभी दूर हट जाएंगे इस संसार से, इससे दूर रहेंगे, अकेले में रहना शुरू करते हैं, जंगलों में रहना शुरू करते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, आंख में आंख डाल के बात नहीं करेंगे, दूर 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 शांति, अकेलापन, ये पूरी तरह अलग स्कूल बन जाता है। यस डॉक्टर। After some time, they lost expression on their face become poker face, okay, then they do everything so slow, okay, then the world have nothing to do with them. और फिर ये जो वाले स्कूल है ये आपको पता चल जाएगी कैसे, क्योंकि ये जिस सबको छोड़ते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं रहता, दुनिया से क्या लेना देना, किसी से नहीं, सिर्फ अपने बारे में रहता है कि कैसे कट ऑफ हो जाए। इसीलिए उनका स्टाइल भी अलग रहता है, वो बड़े हर चीज़ धीरे धीरे करेंगे, पानी धीरे से पियेंगे, चलेंगे धीरे से, उनका चेहरा भी सब लोग अगर देखोगे सेम तरह से बात करेंगे, मुंह पे एक्सप्रेशन भी सेम रहेगा, ये पूरे अलग है। यस डॉक्टर। What is the problem with these two schools? Because there's no returning, They do not go and test their condition in the society and come back, Okay, they try to make themselves away from the society, to create another state, a happiness state. That state will never exist. अब ये दोनों स्कूल के बीच में प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है वापस आना, रिटर्निंग नहीं होता है इसमें, ये लोग वापस नहीं आते, ये जाके अपनी जो अनुभव है जो सुख नाचने गाने का वो लेके संसार में जाते नहीं है ना, अपना जो निगलेक्ट का अप्रोच लेके वो संसार में जाते हैं, इसीलिए उनका रियलिटी में वो एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इसका रियलिटी में फायदा ही नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये दोनों स्कूल कहीं भी आपको वो अनुभव नहीं दे सकते, सुख का अनुभव जो आपको मिलना चाहिए। ये डॉक्टर। So we using the 6 gates, that we discussed in the last meeting to check whether the practice is the right practice or it is the wrong practice. इसीलिए जो पिछले एपिसोड में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा फिर से जाके देखो, पिछले एपिसोड में ये बताया गया जो 6 गेट्स, ये आपके लिए आधार बनेगा ये देखने के लिए कि आपकी प्रैक्टिस सही है या गलत है, आपका जो तरीका है शांति ढूंढने का, सुख ढूंढने का, वो सही है कि गलत है, वो ये 6 गेट से पता चलेगा। यस डॉक्टर। These two schools, they ask you, detest, no? Okay, one detest by getting trance, okay, getting boost up, okay. The other one detest by becoming a donkey, the world nothing to do with them, okay.
This is not detachment. Technically, doctor, they are detached. No, they are actually attached to detachment. Yeah. It's not detachment, no. It's not detachment. या तो ये जो दूसरा स्कूल है ना, ये जो डिटैचमेंट की बात करते हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये जिस चीज को छोड़ने की बात करते हैं उसी को पकड़े हुए कि पहले वाला जो है वो छोड़ दो नशा विषा ये सब बाकी चीजें पकड़ देते, ये संसार को छोड़ देते। दूसरा वाला भी वही करता है कि ये संसार को छोड़ देता है और शांति और सुख के लिए अलग से दुनिया से अलग होके बैठ जाता है। यस डॉक्टर। No, when things happen in front of us, no, under our nose, no, this thing, we do not bring our eyes. Whether it's good, whether it's bad, okay, we continue to do our thing. That is detachment. असली डिटैचमेंट का मतलब वो है कि अपने आंख के सामने कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और हम उससे प्रभावित नहीं है, उससे कुछ अफेक्टेड नहीं है, उसको असली डिटैचमेंट बोला जाता है। सिर्फ भाग के अलग होके नहीं होता है, उसके सामने रह के। यस डॉक्टर। You stay away from society, you stay away from home, okay, you try to be serene, you try to be alone. That is not detachment. संसार से दूर होके, परिवारों से दूर होके, जिम्मेदारियों से दूर होके और आप अलग जाके बैठोगे, अलग जाके रहोगे और आप प्रैक्टिस करोगे, ये कोई डिटैचमेंट नहीं है। ये डिटैचमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। यस डॉक्टर। Buddha say no, detachment need to be trained. Even in this Maha Anapana Smriti Sutra say, detachment need to be trained, not to be asked. No, you can ask somebody detach. No, cannot. You must have a method for him to practice detachment. ये जो डिटैचमेंट है, ये वर्ड, ये आप बोल के किसी को बोल के नहीं करवा सकते हो। ये आप बोल के नहीं होता, इसको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये एक सीख है, आपको सीखना पड़ेगा, ये खूबी आप में लानी पड़ेगी, ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप ये डिटैचमेंट। बुद्ध ने अन्नपाना महा अन्नपाना स्मृति सूत्र में ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि इसको बोल के नहीं हो सकता। डिटैचमेंट ये एक प्रैक्टिस है और इसको आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, आपके मन को इसकी आदत लगानी पड़ेगी। यस डॉक्टर। Yeah. The only way in this Maha Anapana Smriti, this thing, the good way to practice this detachment is by counting your breathing. महाअन्नपाना स्मृति सूत्र में सबसे अच्छा तरीका बताया है जिससे आप ट्रेन कर सकते हो डिटैचमेंट में है, तो आपकी गिनती गिनने से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। यस डॉक्टर। Many schools they don't have this, no. Okay, so in order to practice detachment, then they use imagination and all, or they imagine something, they imagine some image. Okay, they say hopefully that the mind will stick to that and all, or will not get disturbed by other things. अच्छा, ये बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं जो ध्यान की पद्धति सिखाते हैं उसमें ये उल्टी गिनती के बारे में कभी नहीं बताते, जबकि वो महा अन्नपाना स्मृति सूत्र में बहुत क्लियरली बताया गया है। ये आपके मन को ट्रेन करने के लिए है, डिटैचमेंट के लिए। लेकिन वो लोग उसके बदले में, ये जो गिनती है उसके बदले में इमेजिनेशन कर देते, एक चित्र डाल देते, कुछ चीज़ सोचने पर मजबूर करते ताकि आपका मन वहाँ अटक जाए, यहाँ नहीं। ये सब That's why in many meditation school, even in the yoga school, this imagination is very important for them, which we do not practice in Sunya. इसीलिए बहुत सारे जो ध्यान की पद्धतियों के जो सिखाने वाले स्कूल्स होते हैं उसमें ये जो इमेजिनेशन है, ये आपके कल्पनाओं के बेसिस पे आपको जो अनुभव दिलवाते हैं सुख का, ये उनकी प्रैक्टिस है। लेकिन शून्य में हम कभी भी कोई कल्पनाओं का आधार लेके सत्य के सामने कैसे सामना करें, इस पे हम कभी सिखाते नहीं है। हम कल्पनाओं के आधार बिल्कुल नहीं लेते। यस डॉक्टर। So there's also in the second school there's also one wrong practice, no. They will chanting for long hour, no. So when they chanting for long hour, their mind become numb, the body become numb, no. So temporarily they forget about everything. और एक तरीका होता है ध्यान का, वो लोग जो चैंटिंग यूज करते, जो जाप यूज करते, ये इतना जाप करते ताकि मन जो है इतना ये हो जाए कि बाकी सब चीजें भूल जाए, एक ही चीज में लगा रहे और बाकी सब चीजें भूल जाए। ये भी एक तरीका होता है। यस डॉक्टर। After chanting, they go back to the whole world. The world is in this thing. Then they go back and chant again. So it become a spiral. No, longer they will chant.
अब जब वो चैंटिंग करते 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 फिर संसार में जाते हैं, वहां तकलीफ होते, वापस आके चैंटिंग 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 करते हैं, और ये जो है लंबे लंबे समय तक चैंटिंग ही चलती रहती है। यस डॉक्टर। So that's why in our Sunya practice, we don't go for chanting. इसीलिए शून्य में चैंटिंग से भी हम लोग कोई आधार नहीं लेते, उसका भी मदद नहीं लेते। डॉक्टर, आई वांट टू ऐड वन थिंग। व्हेन यू वर टेलिंग, Yeah, please. yeah, because when you speak, suddenly some funny examples come. When you are telling that how people imagination, we in Shunya we don't imagine, but there are some schools, it's like you're trying to tell somebody, now I am going to teach you how to fight with the tiger. So they give an imagination, one small toy. Now you fight with the tiger. Now the boy is fighting with the tiger because it's a fluffy, soft toy, and he fights with the tiger, and then he feels, oh wow, I'm so happy. Then he is going into the jungle, and when he sees the tiger, he doesn't know what to do. That is exactly what you said. Perfect, perfect. Okay, please continue. I will translate that in Hindi if you permit. Yeah. जैसे डॉक्टर लिम ने बताया कि हम जो कल्पनाओं से रियलिटी, जो सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। एक छोटा, अगर कोई बच्चा जाता है, बच्चा शिक्षक के पास जाता है, गुरु के पास, गुरु बोलता है मैं तुझे सिखाऊंगा कि शेर से कैसे लड़ा जाता है, ये ले एक रुई से भरा हुआ एक सॉफ्ट टॉय शेर, इससे लड़, और वो बच्चा लड़ता है, उसमें इतनी कॉन्फिडेंस आती है कि अभी वो लड़ सकता है। फिर उसको जाके जब संसार में असली शेर सामने आता है, और जब शेर ने सिर्फ दहाड़ा भी, इसकी हालत खराब हो जाती है। और ऐसा ही होता है बहुत सारे ध्यान की पद्धतियों में, स्कूल सिखाने वाले जब संसार में जाते हैं तब वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, गुस्सा सब कुछ उसमें खुद ब खुद आ जाता है। यस डॉक्टर। So let's make some conclusion now. Now, yes. These are the 4 truths. These are the 4 rules that we should understand. अब हम कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ये जो 4 सत्य है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। यस डॉक्टर। The world is not perfect. Okay, the world is always do not operate in the way that we want. It's not perfect. ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, ये दुनिया आपके लिए इम्परफेक्ट ही है और इम्परफेक्ट ही रहेगी, इसीलिए आप उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। यस डॉक्टर, ये पहला सत्य। You are a millionaire and you have no money, then you suffer, no? Okay, they say you don't want to meet someone and every day he's meeting you, no? You also suffer. You want to be, आपको पैसे वाला बनना है, मिलियनर बनना है, लेकिन पैसा नहीं है, ये एक दुख। दूसरा, आपको किसी से नहीं मिलना है लेकिन रोज उसको मिलना ही पड़ता है, तो ये भी एक दुख का कारण है। Yes, doctor. So this is a law of suffering. First law, okay? तो पहला जो लॉ है, मतलब पहला जो आप बता सकते हो कि पहला जो सत्य है, यह है सत्य है दुख का सत्य, मतलब दुख है, इसके पीछे इसका कोई दूसरा बात नहीं हो सकता, सत्य है वो। यस। And this suffering is caused by us, no? Or by our body, by our mind. We are the one who created all this suffering, no? So we should not blame anybody, anything for this suffering. We have to look at ourselves. ये जो संसारी दुख का है और दुख जो हम अनुभव कर रहे हैं, इसके कारण भी हम हैं, हमारा ही शरीर, हमारा ही मन इसका कारण है, और इसीलिए किसी और को इसके जिम्मेदार ठहराना ये गलत बात होगी। इसीलिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ अपने दुखों के लिए, अपने आप को पहले ये समझ लो कि आप ही उसके कारण हो। यस डॉक्टर। So let's come to the second law. Okay, so first law is the world is suffering. Second law is that there are some conditions that lead to this suffering, and this condition is created by our mind. पहला सत्य जो है कि ये संसार दुख से भरा हुआ है, और दूसरा ये है कि ये जो दुख है इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, और ये कारण जो है ये हमारा मन है। यस डॉक्टर। But you can practice this sunya, you can practice thing, then you are reach a happy stage. We call it samadhi. लेकिन इस तीसरे सत्य को भी जानना जरूरी है। अगर कारण है आपका दुख का और आप खुद हो उस कारण के, तो तीसरा सत्य यह है कि आप उस कारण पे काम कर सकते हो, और आप शून्य प्रैक्टिस करके एक ऐसी स्थिति में जा सकते हो जहां ये मन जो असमाधान स्थिति में था अब समाधान स्थिति में जा सकता है, एक समाधि में जा सकता है। यस डॉक्टर। So
to get this samadhi, of course, you are 6 gates, no, 6 steps that you can practice to achieve this samadhi. और ये समाधि अवस्था जो मन की समाधि अवस्था को पाने के लिए ये जो 6 दरवाजे जो खुलते हैं हमारे शून्य प्रैक्टिस से, ये आपको उस अल्टीमेट समाधि अवस्था तक लेके जा सकते हैं जहां आपका मन पूरी तरह समाधानी हो जाएगा. यस डॉक्टर. Today, because of the time constraint, no, we do not go to all the methods, no. You can practice to achieve samadhi, okay. But today, we just understand that, okay, this is follow the law of suffering, okay, the cause of the law of suffering, okay, the end of suffering, okay. There is the practice to end the suffering. These are the 4 laws. अब समय की सीमा हमारे पास है, इसलिए हम ये पहले तो आज सिर्फ 4 चीज़ें सीखेंगे. पहला वाला कि एक कि ये दुनिया में दुख है, दुख के पीछे दूसरा सत्य यह है कि दूसरे दुख के पीछे कारण है, और कारण हम जानते हैं कि हमारा मन या हमारा जो भी है हम ही है. तीसरा यह है कि इस कारण का निराकरण भी है, इसका कारण को हम पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं, वो हमारे जो प्रैक्टिस है शून्य प्रैक्टिस से. ये जो है प्रैक्टिस, इस चौथा सत्य है, उसके लिए एक पथ है, एक तरीका होता है, उसको आप अगर आप फॉलो करोगे तो ये चौथे सत्य की तरफ आपको लेके जाएगा कि आपका मार्ग खुल जाएगा. यस डॉक्टर. Many people they say, "Hey, Buddha is a pessimist." No, he look at the word suffering. No, he is a pessimist. No, because they only look at the first law. No, they do not look at the other 3 law. काफ़ी लोग बुद्ध को ये मानते कि बहुत निराशावादी आदमी है, पूरी दुनिया में दुख कोई देखता है, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने उसके सिर्फ 4 सत्य में से जो उसने पहला सत्य बताया वही देखा, बाकी ये 3 उसने देखे ही नहीं. अगर उसने देखे रहते तो पता चलता था कि बाकी एक में उसने सत्य बताया, लेकिन बाकी 3 सत्य में उसने आशावादी होने का भी तो बताया है. यस डॉक्टर. The law is, the word suffering is a phenomenon. No, it's not a teaching. Just like the sun come from the east, coming down to the west. No, it's not teaching. No, it's a phenomenon. सत्य वो होता है जिसे सिखाना नहीं पड़ता, सीख नहीं, वो सत्य है. जैसे सूरज का उगना, पूरब से उगना पश्चिम में जाना, ये सत्य है, ये सीख नहीं है. उसी तरह जिस संसार में दुख है ये सत्य है, ये कोई सीख नहीं है, बुद्ध की सीख नहीं है. यस डॉक्टर. The word is not perfect. It's not a teaching, you know. It's a statement to let you know that this is the real world. It look like that, you know. It's not a teaching, you know. It's just an explanation of phenomena. ये संसार दुख से भरा हुआ है, संसार में दुख है, ये कोई सीख नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एक सत्य स्टेटमेंट है. ये फिनोमेना की बात करता है और इसके बीच में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है. यस डॉक्टर. You practice the teaching, you practice the practice, then you achieve a state of peace, you achieve a state of samadhi, a state of nirvana. That is the teaching. आप इस प्रैक्टिस को करो, इस प्रैक्टिस से आपको एक स्थिति मिलेगी जिस स्थिति से आपका मन शांत हो जाएगा, समाधानी हो जाएगा और समाधि में जा सकते हो और फिर निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हो. ये होगी सीख. यस डॉक्टर. So the Buddha just explain to you, you know, how the world look like, how the phenomena look like. You know, this is not a teaching. This is a explanation of the phenomena. Just like you study science and mathematics, you know, or what this is just a phenomena. इसीलिए जो बुद्ध ने बताया, ये इसने सिर्फ आपको बताया कि एक्सप्लेन करके दिया कि क्या हो रहा है, क्या सत्य है. इसको सत्य को जैसे है उस नज़र से देखना ही पड़ेगा, सत्य की नज़र से. इसमें कोई सीख नहीं दिखाई, कोई चीज़ सिखाई नहीं है आपको. यस डॉक्टर. So the teaching is the second 2 part. Okay, the practice of sunya, then you get samadhi. Okay, the practice of sunya, then you get rid of your suffering. That is the teaching. सीख क्या है कि पहले आप शून्य प्रैक्टिस करो, फिर आपको एक समाधि मिलेगी, एक अवस्था मिलेगी जब मन शांत होएगा, फिर वापस शून्य प्रैक्टिस करो, फिर आपको वापस जो अनुभव होगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं सीख. यस डॉक्टर. That's why our 6th gate, this 4 normal truths, okay, is a measuring yak, you know, to measure a lot of teaching, you know. Whether this teaching is a right teaching, wrong teaching, you know, immediately we should know.
ये जो 4 सत्य है, ये हमारे जो 6 गेट्स हैं, ये हमारे लिए एक ये मेजरिंग टेप की तरह है। इससे हम नाप सकते हैं, हम टटोल सकते हैं कि जो बाकी चीज़ें जो हो रही है, जो लोग करवा रहे हैं, ये इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सही है, गलत है, कितने मायना उसका फ़ायदा है या नुकसान है, ये सब चीज़ें उससे मेजर कर सकते हैं। यस डॉक्टर। Actually, Buddha say everybody can realize the realization now. Everybody can put the suffering to an end. That's why Buddha actually he is an optimist. No, anybody can achieve that. I think the greatest optimist who could say that. Yeah, greatest optimist. अगर आप देखोगे एक आशावादी वही एक इंसान हो सकता है जिसको सब निराशाओं में भी आशा दिखता है। और बुद्ध ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इसने ये बोला था कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी वर्ण का हो, कैसी भी परिस्थितियों का हो, वो इस संसार के दुखों से निराकरण प्राप्त कर सकता है, वो मुक्ति पा सकता है, वो दुख से दूर हो सकता है। ये सब है। So Rajesh, maybe in a future session, okay, we are going to talk about 3 schools. Okay, 3 schools. Okay, the Sarawaka school. Okay, the pure this Supreme Airport school. Okay, and this is Yogacara school. Okay, how to end your suffering permanently. आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम लोग अभी 3 स्कूल के बारे में बात करने वाला। एक है श्रावका स्कूल, उसके बारे में जानकारी और मिलेगी। फिर दूसरा है एक जिसको हम बोलते हैं प्योर लैंड स्कूल, या जहाँ पे एकदम अलग तरह से, उसके बारे में भी डॉक्टर आपको बताएंगे। और तीसरा है योगाचारा स्कूल। ये तीनों के बारे में और इन तीनों से कैसे आप अपने दुखों का निराकरण कर सकते हो, इसके बारे में बताएंगे। Yeah, so maybe in the future we need to discuss more about all these things. So today just an introduction. Yes. तो आने वाले अध्यायों में हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, और आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया। सोच लो, आज इंट्रोडक्शन इतना बेहतरीन था, तो आने वाले अध्याय कितने महत्वपूर्ण होंगे। डॉक्टर, then because you were telling after the fourth truth is about following the path, and that leads to the eightfold path. Can we do that next, because it is very much connected to the 4 noble truths? Can we go to the 8 noble path next time, if you are okay? Yeah. Next time we can talk about that. How to put that in your company, corporate training, because that is 8 noble truths. It's like a corporate program. Training, you know. How program? Okay, how to program your mind, how to program your body to get the maximum and peaceful result. Fantastic. आने वाले जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, क्योंकि ये 4 सत्यों से एक जो पथ खुलता है, वो प्रैक्टिस का पथ खुलता है आपको संसार में रहने के लिए। इसलिए जो 8 फोल्ड पाथ जो जिन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि उसके ऊपर जाएंगे। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मटेरियल है। इसके साथ आप अपने आप को कैसे बदलोगे, आपके जीवन को कैसे बदलोगे, आप अपनी लाइफ को कैसे बदलोगे, ये आपको जैसे चाहिए वैसे अपने आप को बदल सकते हो, ये अगर आप 8 फोल्ड पाथ की फॉलो करेंगे। तो उसके बारे में हम अगली टाइम जरूर सीखेंगे। आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो वी कैन कीप दैट एज अ नेक्स्ट जूनियर टॉक्स, द 8 फोल्ड पाथ। Yes, we meet next week. So thank you so much. और हम सब की तरफ से डॉक्टर लिम को नमस्ते, and stay at home, doctor. We are hoping the lockdown opens very soon, but we are still doing a lot of things. Today also we did the morning Shunyathon, and the numbers have gone up. Now there are 14 people who could do 1.5 hour. 14 people. Very good. So congratulations all 14 people, and the numbers are going to go up. We are expecting at least in the next few weeks at least 50 people sitting for 1.5 hour doing Shunya. That is not easy, no, Rajesh. Yes, okay, but they are doing it. 1.5 hour already in a very advanced stage. Yes, but there are people who are doing this, and they understand, they are able to do it for 45 minutes, 50 minutes. But doctor, they are understanding that meditation is no fun. It is serious practice. It is serious practice. That is what I wanted to tell. Everybody thinks they can go for a 10-day retreat and come back and they become masters, and they go to some place and some dance and they become masters. No. This is not easy, and let them understand this, So anyways, thank you so much for your time. See you next on Thursday for Ask Dr. Lim. Till then, take care. Thank you so much from everybody here. And please tell them this is a true yoga school. No? What we are doing is a true yoga.
और जो डॉक्टर लिम और हम आपको बता रहे हैं ये शून्य, ये असली में योगा स्कूल है। ये योगा मतलब आप याद रखो, आपका जो सोच है इस दुनिया के साथ यूनियन होना, यही योगा है। सिर्फ आसन करना नहीं है। आसन अष्टांग योगा के एक पार्ट है। एक्रोबैटिक्स योगा नहीं होता है, एक्रोबैटिक्स होता है। योगा मतलब यूनियन, पूरा यम नियम आसन ध्यान धारणा प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जो 8 बताए, मैंने किसी तरह गड़बड़ी से बोला, लेकिन ये 8 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धारणा ध्यान और समाधि ये भी इंपॉर्टेंट होता है योगा में। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ। सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन। बाय बाय, नमस्ते। सो ये थे हमारे डॉक्टर लिम। उन्होंने हमारे साथ काफी अच्छा वक्त बिताया और हमको ये बताया कि आज संसार में से ये दुख से कैसे निराकरण पाया जा सकता, और ये कोई नशीली चीज लेके नहीं हो सकता, किसी से दूर रह के नहीं हो सकता, कहीं भाग के नहीं हो सकता। इसका एक ही निराकरण है, सामना करके। द ओनली वे दैट वन कैन एंड suffering is not by taking some drugs and forgetting himself, is not by running away from responsibilities, is not by ignoring responsibilities or ignoring people around you, is by facing them, to see things as it is, जैसा है वैसा देखना और उसका सामना करना। और जब ये अनुभव हो वापस शून्य प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। एंड एज अ साइकोथेरेपिस्ट आई एंडोर्स इट। आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रैक्टिकली इन माई लाइफ। आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट by understanding that the only way out is by going in. There is no way other. So please understand that अगर आपको इसमें से छुटकारा पाना है, आपको अंदर ही जाना पड़ेगा। इसके सिवा आपको कोई और ऑप्शन नहीं है।